Hello viewers, Department of Labour in association with EPFO, Ministry of Labour and Employment, Government of India bra aji 24th March te Assistant Labour Commissioner Office Dimapur de Employees Provident Fund laga upor ekta awareness campaign dese. To viewers, I will do awareness camp details pra sai sawo. तो आप लोग तो मालूम है, you all know about Provident Fund, Employees Provident Fund, EPF. This is mainly a social security body. This has been enacted by the Government of India, by the Parliament in 1952 to provide social security to all working class people, everyone, people who work and are not getting benefit social security from the government. This EPF is to provide social security to all of you. So we have been spreading this, telling people about EPF, everyone. It is a statutory body under the Ministry of Labour and Employment, Government of India. Okay, it is a statutory body. So it has the power, which is drawn. EPFO draws the power and the authority from the Act by which it has been made. We don't have to take power or authority from any particular person or individual. All the power, all the authority which is bestowed upon the EPFO, it is drawn from the Act of the Parliament, which is here. This is the book, Employees Provident Fund, 1952. So we exercise this power and authority, and also we reach out to the people. We tell them about these social security benefits. We also have been having this district outreach program. Okay, we call it Nidhi Aapke Nikat. Almost every month. This month also we will be having Nidhi Aapke Nikat on 27th of March. So I will go to the next slide. Here हमारा office है. This is our office. You can, and we have been telling people to come and reach out to us. We have phone number. हमारा 3 phone number है. And we have mail ID. तो नीचे में आप देखो sso.dimapur@epfindia.gov.in. Through this you can reach out to us. आपका प्रोविडेंट फंड रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी दिक्कत होगा, प्लीज reach out to us. In this office we are settling provident fund claim, pension claim, and we are also settling resolving almost all provident fund related issues. अगर आपका प्रोविडेंट फंड रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो इधर में हमारा ऑफिस में रिजॉल्व होगा. आपको दिल्ली, गुवाहाटी कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है. Coming to the next slide. This is very important. Let us remember this. Who can become members of the fund? EPF में मेंबर कौन हो सकता है? Who can become members of the fund? कभी-कभी लोग बोलते हैं कि अरे सर, EPF मेंबर होने के लिए हमको परमानेंट होना पड़ेगा, हमको रेगुलर होना पड़ेगा, हमको 1 साल काम करना पड़ेगा. रॉन्ग. ऐसा कुछ भी नहीं है. प्रोविडेंट फंड एक्ट में सेक्शन 1(3) में लिखा है, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जहां पर प्रोविडेंट फंड लागू है, वहां से जिस दिन से आप ज्वाइन करेगा, फ्रॉम डे 1 यू विल बिकम मेंबर्स ऑफ द प्रोविडेंट फंड. हमारा डीएलसी सर को ही मालूम है, ही नोज. एंड दिस इज एन, ये मैं नहीं बोल रहा है, दिस इज रिटन इन द कानून, इन द ईपीएफ स्कीम में एंड एक्ट एंड स्कीम में लिखा है कि यू विल बिकम मेंबर ऑफ द प्रोविडेंट फंड फ्रॉम डे 1, एंड दिस इज योर राइट. एंड यहाँ पर देखिए, वन इम्पोर्टेंट थिंग इज with effect from 1st August 2025 under the प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, employees drawing salary up to 1 lakh are eligible to join the fund. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार PMVPRY, इधर में भी आप देखिए, इधर में बैनर है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना. इसमें outlay of around 1 lakh crore. Government of India has set aside a budget of 1 lakh crore, 99,400 something, almost 1 lakh crore has been set aside to provide प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना. आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं.
PMVBRY, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, पूरा इंडिया में ले रहा। नागालैंड में थोड़ा स्पीड थोड़ा कम है, तो आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में हम डिटेल में बताएगा, लेकिन एज पर दिस स्कीम, ये स्कीम्स के अनुसार if any employee with effect from 1st August 2025 any person who is drawing salary 1 लाख तक, 1 लाख के नीचे तक जितना है 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 अप टू 1 बिलो 1 लाख सब प्रोविडेंट फंड का मेंबर बन सकते हैं। नाउ अंडर दिस प्रोविडेंट फंड आपको मालूम होना चाहिए, ये EPF एक्ट जो है उसके अंडर में 3 तो स्कीम है। देयर आर 3 स्कीम, प्रोविडेंट फंड स्कीम, पेंशन स्कीम एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। ये 3 स्कीम के लिए आप लोग यू आर एंटाइटल्ड, आप लोग को मिलना चाहिए। आपको प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा और इंश्योरेंस भी मिलेगा। तीनों फायदा आप लोगों को मिलेगा। जैसे आप कभी कोई मॉल में गया, बाय 1 गेट 2 फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री टाइप का, आप प्रोविडेंट फंड का मेंबर बनेंगे इधर, यू बिकम मेंबर ऑफ द प्रोविडेंट फंड, ये दोनों आपको फ्री में मिलेगा। ये दोनों आपको फ्री में मिलेगा। कैसा मिलेगा वो आपको समझाएगा। तो स्कीम नंबर 1 प्रोविडेंट फंड, स्कीम नंबर 2 पेंशन, स्कीम नंबर 3 इंश्योरेंस। एवरी वर्कर, एवरी मेंबर ऑफ द प्रोविडेंट फंड, तीनों स्कीम का उनको फायदा मिलेगा। इसमें देखिए प्रोविडेंट फंड स्कीम में आपको क्या मिलेगा, आपको उसके लिए 12% आपका सैलरी का, आपका रेम्यूनरेशन का 12% आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कंट्रीब्यूट। तो आपको स्कीम चलाने के लिए पैसा चाहिए। The scheme will run with contribution from you and also from your employer. So what will you contribute? Here it says 12% of your salary wages or remuneration. इसमें you will be contributing 12% of your salary and employer will contribute 3.67% to the provident fund, scheme number 1. So it is 15.67%, okay, to the provident fund. ये पैसा आपको कब मिलेगा? Amount reimbursed on resignation, retirement, death, permanent total disability. ये होने से जब आप रिजाइन करेगा, कभी डेथ हो गया, you will be getting the provident fund. All investment, all contribution to the provident fund is without any market risk. All mutual fund, we say that mutual fund, this fund, that fund, any investment that we make is always carrying some market risk. This is the nature of investment. But in EPFO, there is no market risk. If there is any market risk, this will be borne by the government. This will not go to the employees. Subscriber will not suffer. If there is any market risk, this risk will be borne by the government. Interest rate on monthly running balance, 12 months waiting period for withdrawal is basically 55. But when you become a member of the provident fund, if you want to leave, if you want to withdraw the entire money, Provident Fund Act, it has a mandate saying that you have to wait for 12 months. If you are below 55. Why you need to wait for 12 months? You need to wait for 12 months because we want to grant you interest for 12 months. Now we come to the pension scheme. इसमें क्या है? इसमें the contribution at the rate of 8.33 by the employer. ठीक है, subject to ceiling of 15,000. अभी गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है कि 15,000 सैलरी पकड़ के उसका 8.33 का ऊपर में पेंशन ये करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा। आपको देने का जरूरत नहीं है, ये आप 12% कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर भी 12% कंट्रीब्यूट करेगा। एम्प्लॉयर का जो 12% है उसमें से 8.33% इट विल बी फंडेड, इट विल बी यूज्ड टू फंड योर पेंशन स्कीम। उसमें नो कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, मिनिमम 10 इयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन बिफोर 60। इसीलिए आपको अगर पेंशन मिलना है, आपको कम से कम 10 साल तक आपको पीएफ का मेंबर बन के रहना पड़ेगा। तो 60 होने से पहले, इनफैक्ट इट इज एक्चुअली 58, आपको कम से कम 58 होने से पहले 10 साल प्रोविडेंट फंड का मेंबर बन के रहना पड़ेगा। तो जो 55 हो गया, 56 हो गया, 53 हो गया, वो बोलेगा अरे भाई अगर ऐसा बात है तो हम प्रोविडेंट फंड का मेंबर बन के क्या होगा, क्योंकि हमारा तो 58 से पहले हमारा 10 साल होगा ही नहीं। बिकॉज 58 से पहले हमको 10 साल कंप्लीट करना है और अभी हमारा एज है 55, तो हमारा खाली 3 साल बचा हुआ है, तो हम तो प्रोविडेंट फंड मेंबर ज्वाइन करके क्या होगा। इसमें हम एक चीज बोलना चाहते हैं, इसमें आप देखिए, इसमें लिखा है मिनिमम 1 month of contribution required in case of death in service for 10 years. Minimum 1 month. अगर if we start the provident fund in your channel, in your newspaper today, if you become a member of the provident fund today,
and suppose unfortunately that person dies after 1 month, after contributing minimum 1 month, if that person dies unfortunately, then what will happen? The family, the spouse and the children of that particular member will become entitled for pension benefit, monthly pension. EPFO will convert your 1 month, 2 month contribution into a lifelong pension, and you will be, and your family, your spouse, your children, they will be entitled to receive monthly pension. The spouse will be receiving pension till death, and children up to the age of 25, they will be receiving monthly pension. This is the employees pension scheme 1995. इसमें क्या क्या पेंशन है इसमें देखिए, मेंबर पेंशन है, मेंबर पेंशन है, स्पाउस पेंशन है, नॉमिनी पेंशन है, डिसेबल पेंशन है, डिपेंडेंट पेरेंट्स पेंशन है। अभी लास्ट स्कीम क्या है? स्कीम नंबर 3, एम्प्लॉयज डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। ये इंश्योरेंस स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है? अप टू 7 लाख, 7 लाख तक मिलेगा। अगर कोई एम्प्लॉय काम करने वाला एम्प्लॉय मर गया इन सर्विस, अप टू 7 लाख। एक ऐप है हमारा उमंग, UMANG, उमंग। आप वो उमंग ऐप आपका प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आपका मोबाइल में आप उसको इंस्टॉल करिए। उसके बाद आप देखेंगे उसमें बहुत सारे नॉट ओनली EPFO और भी दूसरे सर्विसेज है, लेकिन EPFO का सर्विस कुछ मिल जाएगा। क्लेम सबमिट करना, पैसा विड्रॉ के लिए क्लेम सबमिट करना, आपका बैलेंस चेक करना, पासबुक डाउनलोड करना, हर चीज़ उसमें हो जाता है। आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट करना, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम देयर। आप काम करो, आपका पैन, आपका आधार और आपका कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है, ट्रेड लाइसेंस है, वो आपको मेल करके भी हम पूरा चेक करेगा। उसके बाद हम ओवर द टेलीफोन हम आपको गाइड करेगा, आप रजिस्टर हो जाएंगे। रिमेंबर इन EPFO, अगर कोई डेथ क्लेम, कोई आदमी मर गया, मरने के बाद उसका फैमिली से हमारे पास क्लेम सेटल सबमिट हुआ, वी टेक एवरी एंडेवर टू सेटल द क्लेम विद इन 3 डेज। 3 दिन के अंदर में हम लोग क्लेम सेटल करने के लिए कोशिश करते हैं। ऑल अदर क्लेम्स वी टेक एवरी प्रिकॉशन एंड एंडेवर टू सेटल विद इन 10 डेज। एम्प्लॉय एनरोलमेंट कैंपेन, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, एनरोल लेफ्ट आउट एलिजिबल एम्प्लॉयज 2017 टू 2025। जुलाई 2017 से लेके अक्टूबर 2025 तक, इसका बीच में अगर आपका कोई एम्प्लॉय है जिसको आप लोग प्रोविडेंट फंड में एनरोल नहीं किया, अभी अगर आप करेंगे तो गवर्नमेंट बोला हम आपसे कोई पेनल्टी नहीं लेगा। ये इसमें 4 लेबर कोड आप लोग को मालूम होगा, रिसेंटली गवर्नमेंट अनाउंस किया, ये अभी भी आने वाला है। तो ये हो गया हमारा, दिस इज द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो व्यूअर्स अपना नितु एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लगा पड़ते अवेयरनेस कैम्प डिटेल्स पसालिशे और आमे हलोदे सैमुअल दास ताई रीजनल PF कमिश्नर से तारा भी जानाई दिशे कि तो EPF तो एम्प्लॉइज खान करने ताहान रिटायरमेंट बिछिदे ताहान करने फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे जानाइशे और तारा भी खुशी कि तो एम्प्लॉइज खान इमरजेंसीज टाइम दे पार्शियल विड्रॉवल्स खान भी करो पारो केना जानाइशे और इतो EPF तो खाली एम्प्लॉइज करने कला नगिना इवन एम्प्लॉयर्स खान भी दो बेनिफिशियल असे गुना जानाइशे। तो आमेन दिखो पाइसे कि तो ओवरऑल इतो EPF तो एम्प्लॉइज खान लगा फ्यूचर स्टेबिलिटी करने एक सेफ्टी नेट निशना एक रेसे इधर करने मन से। फॉर मोर न्यूज़ एंड अपडेट्स कीप वाचिंग ग्लोबल विंडो। दिस इज लोली व्हाट्सअप विद माय कैमरा पर्सन Anung Aijamir रिपोर्टिंग फ्रॉम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ऑफिस दिमापुर।